अब बाबा के आपको दर्शन हुआ करेंगे तो ध्यान में ही हुआ करेंगे, ध्यान रखो। अगर आप उस आयाम में घुस गए, हाँ बाई चांस मिल गया कोई रास्ता, घुस गए, कोई दिख गए, दरबार आपको यात्रा कराता है वर्तमान में, इसलिए आप इतनी तेजी से यात्रा कर पाते हैं। जितना आपका लक्ष्य के प्रति तड़पन होगी, जितनी आपकी लक्ष्य के प्रति अपनी गर्मजोशी होगी, जितनी समझने की अग्नि तेज होगी, दरबार आपको उतना ही तैयार करता है, उतनी ही तीव्रता से तैयार करता है। चलिए एक छोटा सा ध्यान करेंगे और ध्यान के पश्चात फिर शेयरिंग भी करेंगे। We'll now do a small Dhyan Sadhana, and after that we'll all share our experiences. V předchozím sezení jsme dělali Dhyan Sadhanu a podělili jsme se o své zkušenosti. बहुत दिनों बाद ये ध्यान हम लोग म्यूजिक पे करेंगे पहले, फिर म्यूजिक बंद हो जाएगा और उसके बाद फिर गहरे ध्यान में उतरेंगे। We'll start with meditation with music. Začneme meditací s hudbou. Then the music will be stopped for a while, and then we'll go deeper into meditation. Pak bude muzika zastavena a budeme pokračovat v meditaci. सभी लोग ध्यान के लिए तैयार होंगे। अपनी अपनी मुद्रा में सभी लोग। Everybody get ready for meditation. Get into a comfortable position of your choice. Připravte se na meditaci, posaďte se pohodlně. With your spinal cord straight. Záda rovně. Your hands in the perfect mudra. अपनी हथेली लेफ्ट के ऊपर राइट अथवा Pravý hřbet ruky na levou dlaň. As you like. Klidně. आंखें बंद। Close your eyes. रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। Zavřete oči. चेहरे पर Spinal cord स्माइल। straight, and a slight smile on your face. A lehký úsměv ve vaší tváři. दरबार सबको व्यवस्थित करें। नेत्र बंद। सभी लोग अपने अपनी अंतर्दृष्टि अपनी नाभि पर ले जाएं। Everybody take your focus internally towards your navel. Soustřeďte se všichni na svůj pupek. अपना ध्यान अपनी नाभि पर, नाभि से अनाहत चक्र होते हुए चेस्ट से और मुख, नाक और अपने दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र पर स्थिर होंगे। Take your focus slowly from your navel towards the Anahat chakra. Přesuňte svoji pozornost z pupku na Anahat čakru. Upwards towards your chest, slowly towards your throat, your nose. A postupně pak ke krku, k nosu. And slowly become steady between your eyebrows. A zůstaňte at the Agya chakra. Pevně ve svém třetím oku.
कुंडलिनी शक्ति प्रवेश खोल दिए जाए सब सभी ग्रंथियां को बाहर खोल दिए। माया ग्रंथि बंद, बाकी सब खोल दिए, सभी चक्र खोल दिए गए, सभी अवरोध हटा दिए गए। प्रवेश पूरे ब्रह्मांड के अंदर।
छी दरबार से सबको ध्यान साधना कराए।
सभी को वापस लाया जाए धीरे धीरे। सभी को वापस लाया जाए। ओम। सभी लोग वापस। एक एक अंश इस आयाम में छोड़ के साधना के लिए सबको वापस लाए। कलयुग को स्तंभित करके रखा जाए। साधना शुरू होने तक के लिए, कल तक के लिए सभी लोग वापस। ओम। वापस धीरे धीरे वापस आएंगे सभी लोग। वापस। सभी लोग धीरे धीरे वापस। Slowly, slowly come back. अपना ध्यान आज्ञा चक्र से धीरे धीरे विशुद्धि चक्र, अनाहत और अपने नाभि चक्र पर ले जाए, अपने मणिपूरक चक्र पर ले जाए। Take your focus slowly and slowly from your Agya chakra downwards toward your Vishuddhi chakra, further downwards toward your Anahata, and then to your navel chakra. Focus on your navel. Om. तीन बार बोलेंगे ओम नमः शिवाय। अपना ध्यान अपनी नाभि पर बनाए रखें। Keep your focus steady on your navel. Say Om Namah Shivaya 3 times again. Rub your both palms together and put on your eyes. Do this 3 times. Slowly, slowly. Open your eyes very slowly.
आधे घंटे का समय शेयरिंग के लिए है। सबसे पहले विदेशी मेहमानों को मौका दिया जाए शेयरिंग का। कुछ विशेष अनुभव हो तो दर्ज करा सकते हैं। The next 30 minutes are for sharing your experiences, and special priority to our foreign delegation. Om. We'll hear from our foreign delegation first. Anybody would like to share their experiences? Někdo chce sdělit zkušenosti? Někdo chce sdělit svoji zkušenost? To, co měl teď v meditaci? Moje zkušenost s touhle meditací je, že jsem v průběhu meditace navštívil různé světy, prolínaly se tam různé obrazy od pouště, kde jsem cválal na nějakým koni, přes nějaký galaktický lety, až přes nějakou zkušenost v nějaký jeskyni a celý se to prolínalo, ale bylo to hrozně příjemné. I have experiences from this meditation. It was very hot and nice. I saw many worlds. Some worlds was in desert, and I drive on horses. Second picture was I fly with another elements or nějakým, jsem letal na nějakých věcech, or something, or fly, or different things. And other picture was I was in some caves and was very pleasant. गुरुदेव, उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा। बहुत गर्म लग रहा था लेकिन अच्छा लग रहा था शरीर। पहले एक बता रहे हैं कि बहुत सारे वर्ल्ड्स में इन्होंने ट्रैवल किया, ऐसा महसूस कर पा रहे थे। कभी किसी रेगिस्तान में थे, कभी घोड़ों की सवारी कर रहे थे, कभी अलग अलग जीवों के साथ उड़ रहे थे जिन्हें ये नाम भी नहीं ले पा रहे हैं, किसके साथ उड़ रहे थे या किसके ऊपर उड़ रहे थे, सवारी कर रहे थे, वो बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद इन्हें ऐसा लगा कि ये गुफाओं में है कहीं पर। तो ओवरऑल बता रहे हैं बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा महसूस किया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। Stephen always well.
छोटा सा सवाल है, हाँ, ये पैर पर रस्सी बांध सकते हैं क्या गुरुदेव, या दोनों पैर को बांध दें अगर, क्योंकि शरीर गुरुदेव बार बार गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उछल रहा है। उछल कर गुरुदेव हवा में रहना चाहता है, ऊपर छत पर जाना चाहता है, और जितना बार शरीर गुरुदेव उठे वो पैर नीचे खुल जाए, वो खींच दे नीचे, खुलते ही नहीं, खुलते पैर शरीर नीचे, तो इसमें पद्मासन लगती नहीं है। तो ये दोनों को ऐसे करके बांध करके करने में कोई नुकसान तो नहीं है, बांध दो इसे। नहीं, सूक्ष्म में बांध देंगे। ओ गुरुदेव, अभी बांध देंगे। जब भी ध्यान करूं तो पद्मासन में सूक्ष्म हो। हाँ, लग जाएगा, अभी करते हैं, शेयरिंग हो जाए। Would anybody like to share? Good. Very good. Moje zkušenosti byly dost podobné. Dostala jsem se do doby ještě někde před Egyptem. Byly tam velmi zvláštní, hodně starodávné stavby a paláce. Potom jsem nějakou dobu strávila v Egyptě. Viděla jsem tam i průvod, zlatý kočár s celým doprovodem, někam odjížděli. Potom jsem viděla nějaké město v poušti, které opouštěli v panice lidi, bylo jich plné ulice, v nějakém panice prostě odbíhali pryč. A pak jsem viděla, jak totéž město si vzala poušť, takže už tam byl jenom písek a takový zmar. Nějakou dobu jsem procházela jeskyněma, žila jsem tam a pak jsem se rozhodla, že potřebuji jít někam na světlo, tak jsem hledala světlo, lezla jsem směrem nahoru, až jsem se dostala do nějaké zase jiné doby. Nic moderního jsem neviděla, bylo to, někdy se tam míhaly obrazy a někdy jsem tam viděla, jako když do kamene, do skály vytesané reliéfy, byly to jako když ploché tváře lvů a starodávných bohů. A když jsem se dostala, pořád jsem se zvedala směrem nahoru a najednou jsem cítila obrovské bílé světlo, cítila jsem ho až v sobě, nemohla jsem se ani nadechnout a už obrazy, které jsem viděla, nedokážu rozklíčovat, protože to všechno tak zářilo, zdálo se mi, že se v tom pohybuju hrozně rychle a doteďka mě buší srdce a mám takový jako hodně naplněný hrudník, pořád si nesu ten pocit. Asi všechno. Very short. She was first at pre-Egyptian times, for sure, but she doesn't know when exactly it was. Then she was in Egypt. She saw the parade, lots of people, lots of horses, golden coach, going somewhere. Then she saw city in the desert, and people were in panic and running away from the city. Then she saw the same city, but it was already buried in the sand, very depressive, nobody, just sand and ruins. And then she was somewhere in the cave, and she saw the light. And when she got out of light, she was another era, and she saw buildings with the flat heads of lions. And then she was going towards the light, and then she was like full of sharp glowing light,
like I felt somewhere, flying somewhere, and that was it. Sorry. गुरुदेव, पहले इन्हें लगा कि ये प्री इजिप्शियन एरा में है। इजिप्शियन एरा बिल्कुल एंशंट, उसमें इजिप्ट के एरा में। और उसके बाद इन्होंने एक परेड देखी, बहुत सारे घोड़े थे उसी एंशंट एरा में, जिसमें एक सोने का बग्गी टाइप भी चल रही थी बीच में। उसके तुरंत बाद इन्होंने महसूस किया कि एक रेगिस्तान में है, और ऐसा महसूस किया कि वही सिटी जो पहले देखी थी वो अब रेत में दब गई है, और बहुत डिप्रेसिंग इनको फील हुआ। उसके बाद आफ्टर दैट ओके, उसके बाद गुफाओं में थे। फिर खुद को बहुत एक लाइट की तरह महसूस किया और उड़ता हुआ महसूस किया इन्होंने। बिल्डिंग्स देखी, बहुत लंबी लंबी पत्थर की, चट्टानों की, और उनके टॉप पर जो हेड्स थे वो शेरों के बने हुए थे, शेर के मुख के थे। वेरी गुड। Anybody else? Ještě někdo? Steve. Jestli to přeložím, ať tě netráfí. Obrazy se prolínaly asi obdobně, různé světy, ale co mě nejvíc zaujalo, tak byly 3 věci. Jedna, že jsem se v určitou chvíli dostal na nějakou jako plošinu a ta velice rychle směřovala vzhůru, velice rychle mě vezla někam nahoru a neviděl jsem kam. A druhá byla, že druhý důležitý moment byl, že jsem cítil poprvé harmonickou kundalini celou, která se mnou velice příjemně, jemně pohybuje. A v tu chvíli, když Gurudev řekl nějaký pokyn, tak se stabilizovala a už se nehýbala. A pak to bylo ještě mnohem hlubší, mnohem příjemnější. A nakonec si pamatuji, že se mi nechtělo vůbec tam odejít, že jsem skoro to nemohl ani ovládnout, abych se vrátil zpět. So in English, to make it short, many scenarios, as my friends, all of them were very positive ones. Shining sun, nature, different scenarios, mostly without people. That was interesting. And 2 major things what I remember were that all of a sudden I got on some like a lift or elevator, but it was just the square, and it took me very in a speedy way up. I didn't know where I am going, but it was very pleasant, and I felt very comfortable with that. And then another interesting thing was that for first time I felt the Kundalini very united, very harmonized, and it was moving with my body. I could feel it very lightly, but then the Gurudev gave the command. I heard just the word Kundalini, and it just stopped. It stabilized. I got even a little bit more deeper, and yeah, this is pretty much it, I think. गुरुदेव, स्टीफन ने जो पहले देखा वो प्रकृति के अलग अलग दृश्य थे। बोले बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लगा। डिटेल में ना जाते हुए उन्होंने ये कहा कि एक चीज़ जो विचित्र थी कि उसमें लोग नहीं दिखे इन्हें, सिर्फ प्रकृति दिखी। 2 मेजर घटनाएं जो इनके साथ अभी ध्यान में इन्होंने अनुभव की। पहली ये थी कि एक स्क्वायर डिस्क पर ये खड़े थे और चमक रही थी और बहुत तेज़ी से इनको सीधा सीधा ऊपर लेती गई
और इन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, बहुत पॉजिटिव महसूस हो रहा था। दूसरी घटना ये थी कि आज पहली बार इन्होंने अपनी कुंडलिनी शक्ति को बहुत तीव्रता से महसूस किया, शरीर में कंपन जैसा हो रहा था। फिर उन्होंने आपकी आवाज़ सुनी, पूरा समझ नहीं पाया आप क्या बोल रहे थे, लेकिन वो शब्द कुंडलिनी जैसे ही इन्होंने समझा तो वो स्टेबलाइज्ड महसूस किया, खुद को, शक्ति को स्टेबलाइज्ड महसूस किया। बहुत सुंदर, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। ऐसे ही धीरे धीरे अनुभव होते जाएंगे और अनुभव के साथ साथ हमारा उत्साह बढ़ती जाएगा और हमारी प्यास भी बढ़ती जाएगी। Gurudev says that slowly and steadily we will keep on experiencing new things, and with these experiences our joy, our ecstasy will keep on increasing, and our curiousness to see more will also keep increasing. Gurudev říká, že jak budeme více a více praktikovat, tak poroste naše potěšení a také bude vzrůstat velice naše zvědavost, co nás čeká příště. वेरी नाइस। और हम ये प्रयास करेंगे कि आपके विदाई से पहले एक महीने में ऐसी कोई डेट तय हो जाएगी कि एक माह में कम से कम 2 बार एक सेशन हम लोग दूर रहते हुए भी जूम मीटिंग पे ले सकेंगे। उसमें हम सभी जुड़ सकेंगे आपके साथ। Gurudev says that before you leave, we will try that every month we can hold 2 such sessions over Zoom calls where we can all get together for such dhyan sadhanas. Gurudev říká, že 2krát měsíčně budeme mít společný satsang přes Zoom. पीछे कोई एक्सपीरियंस? अभी 15 मिनट है, हम लोग शेयर कर सकते हैं। गुरु जी को मेरा सादर प्रणाम। और ऐसा सोचते हैं कि तीसरा सेशन हम लोग निरस्त कर दें ताकि अच्छे से चर्चा करके और ये चर्चा और बढ़ाई जाए। 15 मिनट न करके इसको आधा घंटा बढ़ा लिया जाए तो बात पूरी हो जाए, फिर भोजन करके विश्राम हो और कल भी 2 सेशन हम लोग करेंगे। We'll try, and what we'll do is we'll cancel the 3rd session, and instead for the next 30 minutes we'll keep on sharing our own experiences. And for tomorrow also, Gurudev has said that we'll have 2 such sessions. Gurudev říká, že dnes budeme mít 2 sezení a to dnešní prodloužíme o dalších 30 minut, abychom si mohli sdělit své zkušenosti, a zítra nás čekají také 2 sezení. गुरु जी को मेरा सादर प्रणाम। हाँ, हरिहर गुरु जी। हरी हर। गुरु जी, जब मैं ध्यान में गई तो मुझे बहुत बड़ी गुफा दिखी। मैं पहले माइक मुंह के पास। गुरु जी, मैं जब ध्यान में गई तो मुझे गुफा जैसा दिखा, उसमें खाली ऑरेंज और लाल कलर दिख रहा था। मैं अंदर नहीं जा रही थी। फिर आपने बोला था प्रयास करो,
तो मैं अंदर गई तो मुझे खाली नीला रंग का देखा और मुझे इतना पसीना और फीवर हो गया इतने में ही। तो मैं और आगे बढ़ी तो मैं बोली अब मैं नहीं जा पाऊँगी, माँ बाबा अब मैं नहीं, मुझसे नहीं होगा। इतने में आप डंड लेके आए और बोले आपको कहीं रुकना नहीं, कहीं डरना नहीं, जो आप कर रहे हो वो करते जाओ। आपने एक मुझे आशीर्वाद दिया और मेरा पूरा शरीर ठंडा हो गया। और पता नहीं गुरुजी मेरा भ्रम है कि मैं हम आपको रोज़ सपने में देखते हैं इसलिए आप दिखे कि क्या था मुझे पता नहीं था। लेकिन फिर बस वो नीला रंग का दिखता गया और हम चलते गए चलते गए चलते गए। बस यही एक्सपीरियंस रहा गुरुजी। गुरुजी जब ध्यान साधना में जाते तो फीवर जैसा क्यों हो रहा है? अभी एक साथ सबको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। हरि है। गुरुदेव सबसे मैंने पहले क्या देखा, जैसा माँ का दरबार पे त्रिशूल है, ऐसा बहुत सारा त्रिशूल मतलब ऊपर से आ रहे थे स्काई से, आकाश से। और उसके बाद मैं इधर ही था तो कोई सफ़ेद कपड़ा लगाया एक आदमी आया, वो मेरे को इधर के प्रणाम किया और उसने मेरे को बाद में कुछ लोग आया और मेरे को पालकी जैसा था, पालकी जैसा में मेरे को रख के ऊपर लेके गया। वो चारों था, चारों ने दो साइड में थे, दो इधर साइड में थे। तो वो बंदर जैसे लग रहे थे। ऊपर शरीर तो ह्यूमन जैसा था बट पूछ भी था वो लोग का, फेस बंदर जैसे थे, क्राउन लगाए थे और सबके हाथ में एक एक गदा थे। और ऊपर लेके गया, ऊपर रख दिया और साइड साइड में दो परी जैसी थी, वो ऐसा फैन साइड कर रही थी। तो मेरा पीछे ऐसा लग रहा था कि कोई भगवान श्री राम खड़े हैं। उसके बाद मैंने देखा कि माता कामाख्या है, सर उसका बहुत बड़ा बीड़ा है, बीड़ा बजा रहे है माता रानी और उसका लंबा सा केस है, वो खुश है। और बड़ा सागर था, सागर से एक बड़ा कमल का पुष्प था, कमल का पुष्प ऊपर जा रहा था। वो पुष्प में माता रानी बैठ रही थी और उसने बीड़ा बजा रही थी। बीड़ा बहुत बड़ा था और माता का स्वरूप भी बहुत बड़ा था। तो मैंने बोला कि माँ मैं आपका ये स्वरूप नहीं देख पा रहा हूँ। तो शायद वो छोटी रूप में आ गई तो मैंने शायद छोटे माँ का देख लिया। उसके बाद मैंने क्या देखा, फिर एक नीला रंग का बड़ा महाकाली का स्वरूप था, उसके सामने आप बैठे थे, आप साक्षात बैठे थे और आपने लॉलीपॉप खा रहे थे और कुछ देवी देवता ऐसे थे जो आरती कर रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने वो देखा कि उसके बाद मैं आया, फिर माता कामाख्या वो मंदिर से चल के इधर आई थी, इधर अंदर तक आई थी। माता का पैर पूरा इधर पैर का वो बैठ रहा था, उधर से बहुत चमक आ रहा था और माँ अंदर आ गई। अंदर आके उधर आपके साइड में बैठी और इधर वो माता का पिक्चर है, पिक्चर में अंदर चली गई। फिर बाहर आई, माता आने टाइम इधर से आई थी, जाने टाइम इधर से गई और जाने टाइम उसने मेरा सिर में ऐसा करके हाथ रख के मेरे ऐसा मसारा और माँ फिर चले जाके जौन सा स्थान से आई थी उधर ही बैठ गई। गुरुदेव और कोई? स्वामी गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। हरि है। गुरुदेव सब पहले केदारनाथ मंदिर में मंदिर आधा बर्फ़ से ढका हुआ था, उनको पंचामृत स्नान कराया और फिर अपने आप को हम देख रहे हैं कि बर्फ़ में जैसे ध्यान में बैठे ऐसे ही ढके हुए हैं। फिर बर्फ़ की चोटी तक ऊपर ऐसे बैठे हैं और पूरा बर्फ़ गिर रहा है ऊपर से। फिर एक पता नहीं कौन से लोक में गए जहाँ पे बिल्कुल बड़े बड़े बालू के टीले जैसे थे और बड़े जैसे मोर के पंख होते हैं ऐसे रंग बिरंगे पुष्प चारों तरफ लगे हुए हैं और जैसे जल का वो गुब्बारा जैसा बनता है ऐसे ही अलग अलग छोटे छोटे बड़े बड़े वो गोल गोल वो दिखे। ऐसे कई जगह अलग अलग दृश्य दिखे। प्रणाम गुरुदेव।
प्रणाम गुरुदेव। मैं जब ध्यान में गया, मेरा बहुत पसीना आना शुरू हो गया। फिर मैंने देखा कि मेरे ऑपोजिट में सार्थक ध्यान कर रहा था। सचमुच। उसके बाद मैं ऐसा लगा बहुत पसीना निकल रहा है। फिर मैं उड़ते गया। फिर कोई ब्लैक जैसा होल था, उसमें घुस रहा था। स्टार था। फिर जब आप बुलाए तब मैं बॉडी थोड़ा ऐसा वाइब्रेट हुआ, फिर मैं आ गया। ऐसे देख रहा था। धन्यवाद गुरुदेव। मैं सार्थक को क्यों देखा गुरुदेव? इसलिए कि तुम हर बार सार्थक को ही देखता है। हरिहर गुरुदेव। हरिहर। पहले तो एक लहसुन की गांठ आई हाथ में, लहसुन की पोतिया, वो आई तो यूं रगड़ी, उसका लस पूरे हाथ में बन गया। दूसरा कुछ खाने पीने वाले नमकीन टाइप के आइटम। तीसरा एक ग्रीन बहुत बड़ी झोंपड़ी हरे बांस की बनी हुई, जैसे रामा देवी, उससे बहुत बड़ा विराट रूप है उसको, काफ़ी मार्केट टाइप में। फिर कुंभ में जाते हुए कुछ क्षेत्रीय लोग। बहुत बढ़िया। प्रणाम गुरुवार। हरी है। प्रणाम गुरुवार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग आपके सानिध्य में इतनी यात्राएं कर पा रहे हैं। उसके लिए ये एक पूर्ण गुरु की विश्वास के कारण हो रहा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके द्वारा हम ये सब कुछ देख पा रहे हैं। तो एक अनुभव है कि जब मैंने यात्रा की तो यात्रा में सबसे पहले ही मेरे को वहाँ सुनाई दिया कि तुम इंद्र के पास हो। तो मैं वो स्वर्ग और वो देख नहीं पाया हूँ। लेकिन फिर उसके बाद में मेरे सर पे एक गोल्डन रिंग है जो बहुत तेज़ी से चमक रही थी। फिर मैं वहाँ से वापसी आता हूँ, तो वापसी में जैसे आपने बोला कि सबको वापस लाया जाए, तो नाभि के ध्यान कीजिए। तो नाभि पे ध्यान करने पर एक और दिखाई देता है कि जो विष्णु जी का चक्र है और उंगली है और वो चक्र घूम रहा है, पर जैसा हम लोग देखते हैं, जो देखते आए, पर वो वैसा नहीं था गुरुदेव। और चक्र और उंगली ही दिखाई दे रही है, बस मैं इतना ही देख पाया हूँ गुरुदेव। धन्यवाद गुरुदेव। मैं भंवर सिंह राठौड़। मेरे गुरुदेव श्री कुल्ले शंकर महादेव को कोटि कोटि प्रणाम। ध्यान में जो है ऐसी गोल्डन रोशनी दिख रही थी, और वो रोशनी थोड़ी सी फीकी पड़ते ही फिर गुरुदेव श्री का दंड दिख रहा, और दंड के बाद फिर वापस वो रोशनी दिख जाती। थोड़ा और भटकता, कहीं ध्यान जाता, इतने में वापस दंड दिखता, दंड दिखते ही ध्यान वापस वही गोल्डन रोशनी में आ जाता था। जय। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुदेव आपके चरणों में शतकोटि प्रणाम। हरि है। आज ध्यान के बहुत कुछ प्रकाश ही प्रकाश है। तो मानव जीवन में आपके बिना कोई इस ध्यान पद्धति को नहीं ला सकता है। माँ और आप दोनों मिलकर इस ध्यान की पद्धति को लाए। आप आज जब हम कुंडली शक्ति जब ऊपर ऊर्ध्वमुखी हुआ, तो सिर्फ माँ की नीला प्रकाश ही प्रकाश, जो इस ध्यान के स्थान पे लेके सारी स्थान को प्रकाश ही प्रकाश करते गए। हम लोग इतना प्रकाशित हो रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद है गुरुदेव। ऐसे हम लोग आगे और प्रकाशित हो जाए, यही हमने देखा है गुरुदेव आज। श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
मैं मनीष माधव रमन सूरत से। श्री गुरुदेव भगवान, अभी ध्यान करते समय एकदम शून्य हो गया था मैं, और ये शून्यता में ऐसे लग रहा था कुछ बहाव हो रहा है, पूर्ण रूप से बहाव चल रहा था, और अभी तक चल ही रहा है, वो अभी भी कंटिन्यू है, और थोड़ी गर्मी लग रही है। बहुत शून्यता आ गई, कुछ ना आगे दिख रहा है ना पीछे दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, और बहुत आनंद का अनुभव हो रहा था। बहुत आँख खोलने की इच्छा नहीं है अभी भी। कोरा कागज है ये दिल मेरा। अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी लंबी यात्रा करके आए, इंजन तो गर्म हो ही जाता है। सभी के इंजन गर्म हो जाते हैं। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी लंबी यात्रा आप लोग करके आते हो, उसको गणित में नहीं समझा सकते आप। You cannot even imagine how far you travel when you do dhyana sadhana with Guruji, and it cannot be calculated. It's that far that you go. इसीलिए शरीर में गर्माहट और बुखार जैसा फील होना, And that is why you feel the heat and you feel feverish and very hot after the dhyan sadhana. लेकिन हल्कापन बाद में होना। Nemáte tušení, jak daleko cestujete, do jakých vzdáleností, které nejsou ani změřitelné s Gurudevem, a proto cítíte horkost, horečku, teplo. And despite that you feel very light. Zároveň se cítíte velmi lehkými. और कोई यात्री? Any other traveler would like to share their experiences? गुरुदेव प्रणाम। मैंने गुरुदेव पहले मैं बोल सकती थी। हाँ बोलो बोलो। गुरुजी बोल नहीं पा रहे हैं। बोल डालो दे। मैं गुरुजी लास्ट में जब आपने बोला कि नाभि पे ध्यान दें, तब मैंने माँ के मंदिर में, माँ महाकाली के नीचे देखा कि भगवान शिव लेटे हैं और माँ साक्षात जैसे खड़ी हैं उनके ऊपर, और उसके बाद गुरु माता जी का दर्शन हुआ, और कुछ नहीं देखा। प्रणाम गुरुदेव। मुझको सबसे पहले जैसे ही शुरुआत में ऐसा लगा कि बहुत सारे भगवाधारी लोग इतने ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे सामने इधर मेरे खड़े हो गए हैं। फिर उन लोग हटे तो आपके साइड से एकदम सुनहरा लाइट और ठंडी ठंडी हवा एकदम आई। फिर इसके बाद मुझे थोड़ी देर में एक जैसे गुफा जैसे मेरे को दिखाई दिया, और फिर वाइट कलर ऐसे दिखा, और बड़े गुरुजी भी मेरे को सामने हैं ऐसे करके मेरे को दिखा। बस इतना ही अनुभूति हुई। धन्यवाद। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। दोन अनुभव आद हुई, वो अद्भुत अनुभव आछे। सर्वप्रथम गौ माँ दर्शन हुई, सफेद गौ माँ जो न पीठ पर पर्वत बनी हुई, वो गौ माँ दूध धारा चली, जो काले रंग शिवलिंग ऊपर दूध धारा निरंतर बह रही। शिवलिंग तात बालिका देवी माँ दर्शन हुई, दोन दूध तात शिवलिंग स्नान करा रही। जोन अर्घा ते दूध निकली, वो बालिका माँ
हाथ में ली, वो एक झोंपड़ी दिखी, कुछ झोंपड़ी। में एक सफ़ेद वस्त्रधारी माई, वो बालिका माई पुकारी, माई दूध प्रसाद माँ ले लई। वो माई दूध लई, वो मुख माँ गहन कर लई। प्रथम ई दिखी, वो पश्चात एक नहर दिखी, जो न दुग्ध नहर दिखी, बहाव। वो नीचे को न चली, एक गुफा दिखी, बड़ी गुफा, बहुत बड़ी गुफा। उनमें को न खड़ी, जो का पीठ तरफ खड़ी। वो बोली, तुम्हें कौन आछे, कहाँ जा रही? आमी बोली, हमारा नाम टॉमी तेक्तर नमन, तिरी करौली तंकर महादेव, बब्बा पाते आई। वो घूमी, आमी वो का प्रणाम करी, दंडवत करी। वो आत्मा फरसा हुई, सफेद वस्त्रधारी, प्रणाम कर द्वार खुली। आमी जन आगे गई तो गौ माँ तहूँ और गौ माँ दिख रही। ये अनुभव हुई बब्बा। बहुत सुंदर। प्रणाम गुरुवर, मैं चंद्रप्रकाश गंगानगर राजस्थान से। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। आपके सानिध्य में हमें ध्यान का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। मुझे ध्यान में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हुई और ब्लैक होल दिखा, बिल्कुल एकदम ब्लैक। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। बहुत सुंदर है। ध्यान में सबके अनुभव अलग अलग होते ही हैं। एक रास्ते में एक साथ 10 लोग भी चलें और 10 लोगों से कहा जाए कि आपने रास्ते में क्या क्या देखा, तो सबकी पुस्तक में अलग अलग ही लिखा मिलेगा। कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई कैसे देखता है। सब कुछ आपकी दृष्टि पे निर्भर करता है। आपकी दृष्टि जो खोजती है वो आपको दिखता है। खोजती का अर्थ है जो पहले से आपकी धारणा में है, वो ध्यान का मुख्य लक्ष्य बन जाती है और फिर ध्यान उसी धारणा पर ही आधारित होता है। आप लोगों को कभी ध्यान में दूसरे मजहब और दूसरे धर्म के लोग नहीं दिखेंगे, नहीं आएंगे अगर आपके धारणा में नहीं है। दूसरे लोगों को आपके धर्म मजहब के लोग नहीं दिखते। तमाम चीज़ें हैं, जो चीज़ आपके यहाँ नहीं पैदा होती वो ध्यान में आपको नहीं दिखती। इस तरह से ध्यान एक व्यापक क्षेत्र है। ध्यान जैसे पहले भी दरबार द्वारा बताया गया कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है। ध्यान एक घटना है जो घटित होती है। उसके लिए हम आयोजन कर सकते हैं, अपने आप को ध्यान के अनुकूल बना सकते हैं, माहौल अनुकूल बना सकते हैं, बैठ सकते हैं ध्यान के लिए, धारणा बना सकते हैं, लेकिन ध्यान घटित होगा।
इसको बंद मत किया करो, अच्छा खुला रहने दिया करो, ऊपर रख दिया करो बस। आप सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो धीरे धीरे चीज़ों को समझ पा रहे हैं। बहुत लोग, कुछ लोग आगे चले गए, कुछ लोग पीछे हैं, कुछ लोग बहुत पीछे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फिसड्डी है, क्रम के अनुसार गोल गोल है। ये नहीं कह सकते कौन आगे है कौन पीछे है। इसमें आगे पीछे कोई नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, अगर अंदर तो वो आग है, अपने अंदर अग्नि है, लगन है, वो कितनी है इस पे डिपेंड करता है। बच्चा है कि बूढ़ा है, इसका कोई मैटर नहीं होता। Gurudev initially explained that so many people did the same dhyana together and saw so many different things. And then he gave an example that 10 people traveling on the same path, when asked about their experiences and what they saw, may all write very different things. Gurudev vysvětlil, že taková cesta, tolik lidí pohromadě a tolik různých zkušeností, a říká, že když pojede 10 lidí po stejné cestě, bude 10 různých zkušeností. Doesn't mean what you saw isn't right. Ale to neznamená, že to, co jste viděli, není správně. Depends upon what perspective you're looking at the scenery from. Záleží hodně na tom, z jaké perspektivy se danou scenérii díváte. Furthermore, it depends upon what dharana you hold within yourselves on what you want to see. A také jakou dháranu v sobě máte a co chcete vidět. Jaké vnímání v sobě máte a co chcete vidět. So for example, Příklad? a person will very rarely see something from another religion because he may not hold that perception within himself. A člověk třeba těžko vidí nebo velmi zřídka vidí něco, co se týká třeba jiného náboženství nebo jiné kultury, protože to vnímání nemá v sobě. Similarly, someone from another religion may not see which religion you come from. A někdo třeba z jiného náboženství nemůže vidět, z jakého náboženství se přišli vy, nebo vidí něco jiného. Gurudev further explained that within Dhyan Sadhana, some people might seem that like they're ahead of you, and it may feel like some people are far behind, depending upon what they see and how they experience things. Může se zdát v té sadáně, že někteří lidé jsou hodně vepředu a někteří zase velice vzadu, podle toho, co vidí. It may seem so, but Gurudev explained that the journey is like a circle. Ale to je jenom zdání, protože ta cesta je jako kruh. That nobody is really going ahead of you or behind. Takže nikdo nemůže být opravdu vpředu nebo pozadu. जब तक तमाम विकल्प रहते हैं, ऊर्जा उन तमाम विकल्पों की तरफ बहती रहती है, और जो मुख्य लक्ष्य रहता है वहाँ तक पहुँचने के लिए ऊर्जा कम पड़ती है, आग कम हो जाती है। जब वो सभी छिद्र बंद हो जाते हैं विकल्प के, तो फिर ऊर्जा अपने गोल की तरफ बहुत तीव्र गति से बहना शुरू होती है। और ये तीव्रता इतनी तीव्रतम गति पकड़ सकती है कि व्यक्ति क्षण में समाधि को उपलब्ध हो सकता है।
Gurudev further explains that as long as you have multiple options with you, multiple things that you want to see, your energy or that fire within you to see that one goal of which, the perception of which you hold within you, it may not be as clear. But what the Darbar does is, it concentrates all your energy on that one goal. Gurudev dále vysvětluje, že pokud je příliš mnoho věcí nebo více věcí, které chcete vidět, tak ta energie není tolik skoncentrovaná a je těžké vidět tu jednu hlavní věc, to vnímání, které máte v sobě a ten směr. Ale Darbar dokáže, vám pomůže v tom, že skoncentruje tuto vaši energii a tu vaši pozornost tak, abyste ten cíl viděli jasně. Gurudev said, individual. Individual, if you have multiple preset information, then accordingly you travel to meet what you already have created the perception of, and in the process you wear out your energy, and the main goal, by the time you have to go to the main goal, is actually lost out. You are not left with enough energy to go, and then you normally give up. So, and further Gurudev said that when you have the real fire and the perception is very refined, the highest goal could be achieved in fraction of second. Ještě upřesním, platí to, že jsme si řekli, že pokud to vaše vnímání je příliš rozptýlené do mnoho stran a ženete se za více cíly, tak se můžete na té cestě ztratit, ale pokud je to vnímání zacílené, vycizelované do preciznosti, takže můžete ten svůj cíl dosáhnout během zlomku sekundy. The power is such that a person can attain samadhi within a moment. Tak potom se stane, že osoba může ta síla je tak obrovská, že samády můžete dosáhnout během zlomku sekundy. इसके लिए केवल संकल्प की आवश्यकता होती है, एक मजबूत संकल्प। और ये संकल्प ही आपको आपके मुख्य गोल तक पहुंचा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। For this, all you need is a very strong sankalpa. Vše, co potřebujete, je velmi silná sankalpa. And this will lead you very fast towards your goal. A ta vás povede velmi rychle k vašemu cíli. So it's your own sankalpa that leads you forward. Tak je to vaše vlastní sankalpa, která vás vede kupředu. संकल्प यही कि स्वयं को पूरा पूरा जानना है, और स्वयं को पूरा पूरा जानने के पश्चात स्वयं के द्वारा सब कुछ समझना है, सबसे समझना है और सबको समझाना है। ये मनुष्य जाति के पास सबसे बड़ा स्वभाव है, ये उसका स्वभाव है। जो वो जानता है दूसरे को जनाना चाहता है, जो भी वो जानता है समझ लेता है, दूसरे को समझाना चाहता है, रोक नहीं पाता अपने आप को। जब भी वो कुछ समझ लेता है दूसरे को समझाना चाहता ही है। समझना और समझाना ये क्रम है, ये व्यवस्था है, गोल गोल घूमता रहता है व्यक्ति। 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाने के बाद वो समझाने की कोशिश, दूसरे जगत में रह करके भी समझाना नहीं छोड़ता। और जब समझना नहीं आता लोगों को तो फिर वो समझाने के लिए खुद भी उतरता है। The sankalpa, as Gurudev mentioned, should first be to understand yourself. Ta sankalpa
počátku slouží k tomu, abyste pochopili nejdříve sami sebe. And then once you do, then you must try to know and understand from yourself. A potom další fáze je to, že rozumíte sami ze sebe. And once you do that, then you must try and make other people around you understand. Že to porozumění vychází z vás a pak je na vás, abyste umožnili pochopit a rozumět lidem kolem vás. Gurudev further explained that it is in man's nature to explain things, explain his own experiences and his wisdom and to share it with others. Říkal Gurudev, že to je podstata člověka. Vysvětlovat a sdělovat svoje zkušenosti. That every person keeps on doing this. Že tohle dělá každý člověk. Here and even when they are in different realms, this nature remains. In different realms. A dokonce i když jsou v jiných realitách, tak tato podstata zůstává neměnná. And they keep making efforts from those different realms that people here can understand. A dokonce i z těch jiných světů nebo dimenzí se snaží a vyvíjí úsilí, aby lidé zde rozuměli. And if they still don't understand, then they come down from that realm to then further make people understand A in this world. když to nestačí, tak sestoupí do této naší reality, aby nám pomohli porozumět. गुरुदेव, आपने अवतार का और अवतरण की प्रक्रिया को बहुत ही सरल शब्दों में परिभाषित कर दिया आज। अब तक अवतार और अवतरण की इतनी सहज सरल व्याख्या अब तक नहीं रही है। जय हो गुरुदेव। चाहे उपकरण कुछ भी हो, चाहे वो महाभारत हो समझाने के लिए, हर चीज़ समझाने के लिए, हर अवतरण समझाने के लिए, और जितने सहजता से, जितने सरलता से, जितने लोगों ने कितना जटिल बना रखा है इसे अवतरण को। जय हो गुरुदेव। वो तो कह दिया गया कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। तब तब तो धर्म की हानि का अर्थ है जब व्यवस्था के विरुद्ध लोग जीने लगते हैं, ज़्यादा लोग, तो फिर जो मास्टर होता है फिर वो खड़ा होता है कि अच्छा बहुत हो गया। आज का जो वर्तमान कालखंड है, हमारे अनुसार तो इस कलयुग में सबसे ऊर्जावान कालखंड है, और शायद ही समझने के लिए और समझाने के लिए इससे अच्छा कालखंड अभी पीछे विकसित नहीं हुआ इस कलयुग। इस मामले में भी हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस कालखंड में अपनी शरीर यात्रा में हैं। महापुरुषों ने भी कहा है पीछे हमारे कि जितने समय में हम सतयुग में समझ सकते थे, उससे कम समय में त्रेता में, और उससे कम समय में द्वापर में, और सबसे कम समय में कलयुग में समझा जा सकता है। अगर सतयुग में वर्षों में, तो कलयुग में क्षण में समझा जा सकता है। आज की जो नई पीढ़ी है वाकई में समझने के लिए बेताब है। लेकिन ये उनकी मजबूरी है, सही और गलत का, असली और नकली का वो भेद करने में सक्षम नहीं है। जब देव शक्तियाँ अपने उछाल पर होती हैं टॉप पे, तो दैत्य शक्तियाँ भी
टॉप पे ही होती हैं। दोनों शक्तियाँ लगभग बराबर रहती हैं और दैत्य शक्तियाँ आकर्षित ज़्यादा करती हैं, उनमें आकर्षण ज़्यादा रहता है। हमेशा दैत्य शक्तियों में आकर्षण का कारण भी अपना है। तो स्वाभाविक है भटकना, लेकिन भटकना इसलिए भी आवश्यक है कि जब सही की पहचान होगी तो फिर पूरी निष्ठा से वो करेगा। जब भटक के आदमी 10 जगह से और जब कुछ नहीं मिलता है, तो जहाँ कुछ मिलता है वहाँ वो पूरी निष्ठा से लगता है, क्योंकि उसके पास आकलन करने के लिए पिछले 8-10 जगह का एक्सपीरियंस रहता है कि क्या बेहतर है। तो वो जो एक्सपीरियंस है पिछला, वो बेकार नहीं गया है। उसे ये मत समझिए कि हमारा समय कोई बेकार चला गया है। बेकार बिल्कुल नहीं गया है। आज के समय को पिछले समय से कंपेयर करके ही आप सही और गलत का भेद जान सकते हैं। इसलिए पिछला भी आपका सार्थक ही है। इसलिए हमेशा सार्थक ही रहता है। आप हल्का सा एक्सप्लेन कर बाद में कर दीजिएगा। हाँ ठीक। Remind me at the dinner time. It's about the reincarnation process and the purpose of reincarnation. How the supreme consciousness and consciousness below that comes back to the world, and what did it do? And so timing wise, this is the best time. Things that could have happened and occurred or understood, say, centuries and centuries, yugas ago, it could be done in few seconds now. That's the best time. The only problem is that people want to understand, but there is an absence of the people who could make them understand. That's the only problem. Je to, připomeňte mi po večeři nebo u večeře na reinkarnaci, na to, jak se vstupuje nejvyšší vědomí sem. A situace je taková, že teď je možné věci, které nešly celá staletí nebo tisíciletí dotáhnout nebo udělat, tak teď je možné těchto věcí dosáhnout během sekund. Problém je, že je málo lidí, že lidé to nejsou uvědomělí a je málo lidí, který dokážou vlastně lidem to uvědomění předat. Budeme diskutovat u večeře tady to. संसार में बल्कि पूरी सृष्टि में दो ही तरह की वस्तुएं हैं। एक वो जो दो आंखों से दिखती है, दूसरी वो जो दो आंखों से दिखती नहीं है। दो तरह की वस्तुएं जो दो आंखों से दिखती है वो हमें बनती और बिगड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन जो दो आंखों से नहीं दिख रहा है वो उस बनने और बिगड़ने का कारण है। वो उसका कारण है, उसके बीज उस कारण में है। इसीलिए वस्तुएं बनती और बिगड़ती, विध्वंस और सृजन दिखता है। Gurudev said that there are only two things. One that can be seen through the eye
and the other that cannot be seen through the eyes. Gurudev říká, že existují jenom dvě věci. Ty, které můžeme vidět vlastníma očima a ty, které vlastníma očima vidět nemůžeme. That which can be seen through the eyes, To, co můžeme vidět vlastníma očima, we can see it coming together and then diffusing apart, můžeme vidět, jak falling se apart. ty věci spojují a rozpadají. But we must understand is that which we cannot see through the eyes Musíme chápat, že to, co očima vidět nemůžeme, is the cause for that which we can see coming together and falling apart. je příčinou toho, co nemůžeme vidět, když se spojuje a rozpadá. इसमें सबसे अद्भुत ये है कि जो बन रहा है या बिगड़ रहा है, विध्वंस या सृजन, इसमें वस्तु कम नहीं होती. What's interesting is that what is coming together, in the process of coming together and falling apart, V procesu spojování a rozpadání nothing is really destroyed. nic není opravdu zničeno. और ना कभी कम होगी. And it will never ever be absent. A nikdy to nebude nepřítomné. Never saw it. Never foresaw. Yes. There's no shortage of said object, Destrukce je jenom změna. and it will never be. गुरुदेव ने कहा, the one, there is never, it's in the process of destruction or fusion diffusion, the objects do remain. It's never that by means of destruction the number will go down or get evaporated. There is nothing of that sort. The number is equally balanced. There is no shortfall in that. Only the shape, size, name, that keep on changing. V procesu destrukce není nic ztraceno, mění se jenom tvar, ale nemůže se nic ztratit. इसी प्रकार जो दो आंखों से नहीं दिखती है वस्तु, वो भी कभी घटती और बढ़ती नहीं है. इस प्रकार देखा जाए कि कोई भी वस्तु जो दो आंखों से दिखती है या इन दो आंखों से जो नहीं दिखती, कभी भी घटती और बढ़ती नहीं है. सदा उनकी जो क्वांटिटी है वो एक सी बनी रहती है. और जो दो आंखों से दिख रहा है घटता बढ़ता हुआ, वो कहीं घट रहा है तो कहीं बढ़ रहा है, लेकिन ये भ्रम है. और इस भ्रम को अगर तोड़ना है तो भ्रम के बाहर जाके देखना होगा, यानी समय के पार जाना होगा. ये भ्रम तभी टूटेगा जब आप समय के पार जाएंगे, समाधि अवस्था को प्राप्त करेंगे. प्राप्त करते ही हैं. तमाम बच्चे हमारे बीच में बैठे हैं जो उस अवस्था को छू करके आ चुके हैं, आराम से उसको अनुभव करके आ चुके हैं, जो हमारे बीच में बैठे हैं. दरबार ने उन्हें अनुभव कराया. वो सब खिले हुए कमल हैं. आप भी ऐसे ही खिल सकते हैं, महक सकते हैं और दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं. तो आप सभी लोग जो प्रयास कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है, अनुसरणीय है, लोगों के लिए अनुकरणीय भी है.
आप जब ध्यान साधना करते हैं तो इसलिए आप यात्रा कर पाते हैं। दरबार आपको यात्रा कराता है वर्तमान में, इसलिए आप इतनी तेजी से यात्रा कर पाते हैं। जितना आपका लक्ष्य के प्रति तड़पन होगी, जितनी आपकी लक्ष्य के प्रति अपनी गर्मजोशी होगी, जितनी समझने की अग्नि तेज होगी, दरबार आपको उतना ही तैयार करता है, उतनी ही तीव्रता से तैयार करता है। सब अपने पर घटित होता है, अपने से घटित होता है और अपने में घटित होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है और यही रास्ता है वो समय से पार जाने का। हरि हर। Like Gurudev explained about objects that we see coming together and falling apart through our eyes, the same thing happens with objects that we cannot see with our eyes. Tak jak Gurudev hovořil o objektech, které můžeme vidět, jak se rozpadají a znovu slučují, nebo slučují a rozpadají, tak totéž se děje s objekty, které svýma očima vidět nemůžeme. What's interesting is, even in that realm, things remain balanced. There's no shortage and there's no excess. A je zajímavé, že i v těch jiných dimenzích, které vidět nemůžeme, jsou věci vyrovnané, není ničeho nedostatek ani ničeho nadbytek. In the process of coming together and falling apart in the subtle realm, it may seem as though things are coming together in a certain place and falling apart in a different place. Mladé děti, které díky milosti Darbaru a Gurudeva have been able to experience byli the samadhi. schopné už projít samády. They're all sitting amongst us today. Sedí dnes mezi námi. Today, the dhyan sadhana that we can do and the journeys that we are able to take. Dnešní dhyan sadhana nám umožní dělat to, co jsme schopni dělat a jít a projít cestu, kterou jsme schopni uskutečnit. Are only because of the presence of an absolute guru. Ale jenom pouze díky přítomnosti absolutního gurua And the grace of the divine darbar. A požehnání svatého Darbaru. That can take us through different realms and show us different things. Díky tomu se můžeme podívat do různých realit a vidět různé věci. Whatever you wish to see, Cokoliv si přejete vidět, however strong your perception is, your dharana v is, závislosti na tom, jaká je vaše dhárana neboli vnímání, the darbar can take you there. Darbar vás tam může vzít. It can take you beyond time Může vás vzít and it can also take you to samadhi. za čas a může vás vzít i do samády. बाबा को बनाया, बहुत शानदार बनाया। साइज में अंतर है, केवल साइज। अच्छा, ये बाबा का बनाया है आपने? हाँ, ये बेटा किस मेटल में है? ये ब्रास में है, ब्रास है, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा प्रयास है। ये बेसिकली तो ये ज्वेलर्स हैं, लेकिन बाबा के लिए उन्होंने प्रयास करके कुछ ये बनाया है। वेट भी मेरे लगता है काफ़ी कम है। हॉलो है बीच में, वो 50 ग्राम है और ये 125 ग्राम। हाँ, बहुत सुंदर। एक तो छड़ी भी रखी है, बाबा छड़ी लड़ी रख के बकायदा मुँह में पान दबा के चाप के। अब एक बात बता दें, अब बाबा के आपको दर्शन हुआ करेंगे तो ध्यान में ही हुआ करेंगे, ध्यान रखो। अब इन दो आंखों से नहीं होंगे, आपकी कल्पना में नहीं होंगे। बहुत बढ़िया बेटा, ये साइज बेस्ट है, सब लोग कह रहे हैं ये अच्छा है। ये वाला, ये साइज 1.25 इंची है वो। मतलब दोनों रख सकते हैं।
कुछ लोग एक उठा रहे, कुछ दो उठा रहे। आपने बोले थे 4.5 इंची तक चलेगा ऐसा, हाँ इतना तक, तो इतने तक ही मैंने बनाया इसे। हाँ, ठीक। 4.5 यहाँ खत्म हो गया। ठीक। हाँ करेक्ट, वो आ गया ना, दोनों आ गया। ऐसा ही हम लोग माँ का भी तैयार करें, उसका भी प्रयास करिए। बिल्कुल। अगर आप उस आयाम में घुस गए, हाँ बाई चांस मिल गया कोई रास्ता, घुस गए, कुछ दिख गए, कुछ दिख जाए, झलक दिख जाए। ये जो आप बोले थे ना अभिषेक के लिए, हाँ तो ये गंगा जल इसमें आएगा, एक में लाल चंदन, एक में सफेद चंदन, एक में अभी मैं कल इसको ढूंढ रहा था, और मैं कल इसको ढूंढ रहा था कि मुझे ऐसे लाना है, ये तो ले आए हैं? कल हम लोग ऊपर ढूंढ रहे थे, ये पहुंचाने तक की नहीं हो पा रहा था। कितने दिन से? 12 दिन हो गए, आज मैं यहीं बैठा हूँ। 12 दिन से आप यहीं बैठे हो ये देने के लिए? जी। और हम 12 महीने से सोच रहे हैं कि ये वाला लाए, रुद्राभिषेक के समय समान रूप से कर पाए। गुरुजी ये जीरो मेटल का है। जीरो मेटल का है। वाह, वेरी नाइस। और ये चांदी का है, सेम अच्छा चीज़ है। हाँ अच्छा। तो मैं सोच रहा था कि यही चीज़ यहाँ अगर चांदी का हो तो उससे वैसा बनाएंगे। हाँ। और जीरो मेटल का चल जाए तो बात ही खत्म हो गया। हाँ ठीक है ना, वो चलेगा ना, जीरो मेटल कोई दिक्कत नहीं। चांदी सोना तो अपने मतलब का है। देवी देवता चांदी सोना तो देते हैं बेचारे, लेते कहाँ है? तो देते, नाम ही देवता है देने वाले। वो तो हम उन्हें दिखाते हैं कि ये वाला दे दो, ये वाला, इससे नहला रहे हैं तो यही वाला दो, थोड़ा और बड़ा कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इतना ही चाहिए था, ये मिल गया जुआ। धन्यवाद बेटा, बहुत धन्यवाद। Polish people. हाँ। And would you bless it for us so we can wear it? बिल्कुल अवश्य। हाँ धन्यवाद।